अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने अपनी 2 जमानतों के सिलसिले में जारी किया जियो। सफ़ेद राशन कार्ड ग्रीनगान को 500 रुपये फ़ी LPG सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही का आगाज़। हैदराबाद दुनिया के नक्शे पर फार्मा हब के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बायो एशिया 2024 कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बुलेट बाइक्स के सरक़े में मुलविस गैंग का पर्दाफाश, 3 मुलज़िमीन गिरफ्तार। सरखाशुदा बुलेट्स की गई ज़ब्त। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी की हमरा हुकूमत की जानिब से 2 ज़मानतों, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फरहमी और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही को मुतारिफ़ करवाया। क़ब्ल हुकूमत की जानिब से जियो जारी करते हुए वाज़ेह किया कि प्रजा पालना में दरख्वास्त दाखिल करने वाले और जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड मौजूद है उन्हें 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 40 लाख अफराद को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 50 लाख अफराद को मुफ्त 200 यूनिट बरक़ी हासिल होगी। గ్యారంటీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ గ్యారంటీలను నమ్మి ప్రజలకు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి మీద ఉన్న నమ్మకం, విశ్వాసంతో డిసెంబర్ 3 నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అత్యధిక మెజారిటీ ఇచ్చి ప్రజాప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. డిసెంబర్ 7 నాడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మేము డిసెంబర్ 9, 2023 నాడు ఆర్టీసీలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణము, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలను రెండింటిని ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 48 గంటల్లోనే అమలు చేసి నిరంతరాయంగా ఇప్పుడు ప్రజలకు ఆ 2 పథకాలను అమలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక వెసులుబాటును అంచనా వేసుకొని నిజమైన లబ్ధిదారులకి పథకాన్ని అమలు చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ప్రజాపాలన పేరు మీద గ్రామ సభలు నిర్వహించి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి గ్రామాలలో ఈ పథకాలకు అవసరమైన అర్హుల నుంచి వాళ్ళ నుంచి అప్లికేషన్స్ తీసుకొని వాటిని క్రోడీకరించి అర్హులైన నిజమైన లబ్ధిదారులకు ఈరోజు 200 యూనిట్ల వరకు గృహ అవసరాలకు ఉచిత విద్యుత్తు, అదేవిధంగా 500 రూపాయలకే సిలిండర్ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు లాంఛనంగా ప్రారంభించుకుంటున్నాం. వాస్తవంగా మీకు అందరికీ తెలుసు, చేవెళ్లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున 1,00,000 మంది మహిళల సమక్షంలో శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు కూడా సభకు హాజరయ్యి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకున్నది. కానీ నిన్న మహబూబ్ నగర్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రకటన రావడము, పాత ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్న మండలాలు వివిధ జిల్లాలలో ఉండడం వల్ల ఎన్నికల కోడ్, ఎన్నికల నిబంధనలు అడ్డు రావడంతో చేవెళ్లలో ప్రారంభించాలనుకున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HICC में मुनक़िदा बायो एशिया 2024 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद सिर्फ मुल्क भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फार्मा हब की हैसियत से मशहूर हो रहा है, क्योंकि कोरोना वबा से निपटने के लिए हैदराबाद में 3 वैक्सीन तैयार किए गए थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत विकाराबाद, मेदक और नलगुंडे में 300 एकड़ अराजी फार्मा कंपनियों के क़याम के लिए फराहम करेगी और कांग्रेस हुकूमत कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के क़याम के लिए भी मुकम्मल ताउन करेगी। इस मौके पर वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने बताया कि नई कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी करने के लिए मुआहदा किया है।
One is from Vikarabad district, the other one is from Medak district, third one is from Nalgonda district. We are going to create a pharma village, all the three areas. It's in three different parts of Telangana. It's nearby Hyderabad airport, hardly 1.5 hour drive from international airport. So to reach your infrastructure and your investment. At the recently concluded World Economic Forum in Davos, we got, as my industries and IT minister said, 40,232 crore investment in my state. And I am delighted to share that Takeda has decided to set up their manufacturing facility in Hyderabad in partnership with the Biological E. I'm most welcoming the investment. This facility will make 50 million doses of vaccines each year. As I said, in a world where a virus can create fear, Hyderabad gives hope. I'm happy to share all of you. The German company Miltenyi has decided to set up their R&D center in Hyderabad. I'm welcoming the R&D center. Finally, it's my delightful duty to congratulate Professor Greg Semenza, Nobel Prize winner, on being named winner of the Genome Valley Excellence Award. I once again welcome रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से उनकी मां के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार किया। पूनम प्रभाकर ने इस बात की वजाहत की कि उन्होंने राम के खिलाफ कोई गलत बयानी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने बंडी संजय से कहा था कि वो मज़हब के नाम पर और राम के नाम पर वोट हासिल करने की बजाय गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान बहैसियत करीमनगर रुकने पार्लियामेंट करीमनगर की तरक्की के लिए उन्होंने क्या इक़दामात किए ये बताकर वोट हासिल करें। लेकिन बंडी संजय ने करीमनगर की तरक्की के लिए कोई काम किया ही नहीं, तो किस तरह से वो कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा मुंतखब हो सकते हैं। ఎన్నికల ప్రచార సభ సందర్భంగా నేను అతని యొక్క ప్రశ్నించిన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా 5 సంవత్సరాలు మీరు నియోజకవర్గం చేసిన సేవ ఏందో చెప్పి ప్రచారం కొనసాగించండి. శ్రీరాముడు పేరు మీద ఓట్లాడడం కాదు, మీరు నిజంగా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి చేసి ఉంటే దాన్ని చెప్పమని అడిగితే నేను ఎన్నడూ అననటువంటి మాటలు రాముని పుట్టుక గురించి అక్షింతల గురించి మాట్లాడి నా తల్లి జన్మకు సంబంధించిన మాట్లాడి నేను సభ్య సమాజాన్ని కోరుతామని జన్మనిచ్చిన తల్లి నా తల్లి కావచ్చు, ఇంకొకరి తల్లి కావచ్చు, రాజకీయాలు అడిగిన ప్రశ్న నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి సంబంధించి అయితే అతను మాట్లాడిన మాట తల్లికి జన్మం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సమాజం గమనించాలి, తల్లి పాత్ర ఎవరి తల్లి అయినా తల్లి. అటువంటి మాటలు మాట్లాడిన వ్యక్తి రాజకీయ డ్రామా చేస్తూ తిరిగి ఆ యాత్ర ఒక ప్రచారం రావాలనే ఆలోచనతో మళ్ళీ ఎవరు అడ్డుకుంటున్నట్టుగా ప్రచారం చేస్తారు. మేమెవరూ అడ్డుకుంటలేదు, ప్రజాస్వామ్యంలో యాత్ర చేసే హక్కున్నది. మీరు మాట్లాడిన మాటల్ని మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటారు. ప్రజలే మనకు చట్టం, ప్రజాస్వామ్యమే మనకు చట్టం. ఈ ప్రజల ముందు बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 मार्च को दोपहर 2 बजे बीआरएस अराकीन पार्लियामेंट असम्बली ऑफ काउंसिल और साबिक अराकीन पार्लियामेंट असम्बली ऑफ काउंसिल बशमूल 150 कायदीन मिडीगड्डा पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ मिडीगड्डा नहीं है, बल्कि उसके 3 बैरेज और वो कई दरियाओं पर मुश्तमिल है। इस आबपाशी प्रोजेक्ट की बीआरएस हुकूमत ने पाए तकमील करते हुए 40 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया है। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट 52,000 करोड़ की लागत से तामील किया गया है, लेकिन कांग्रेस और वज़ीर आला हम पर 1 लाख करोड़ की बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। ఢిల్లీలో కూడా యూపీఏ గవర్నమెంటే ఉండే, అంటే 3 చోట్ల కూడా వాళ్ళకు సానుకూలంగా
వాళ్ళకు పూర్తిగా ఒకటే పార్టీకి సంబంధించిన పెద్దలు ఉన్నప్పటికీ ఎన్నడూ కూడా సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేయలేదు. కాబట్టే మహారాష్ట్రతో అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందం కూడా చేసుకోక దానికి ఎత్తు ఒక సాకని ఇంకోటి ఒక సాకని అంతర్రాష్ట్ర వివాదమని నీటి లభ్యత లేదని రకరకాల మాటలు చెప్పి ఆఖరికి ఏమి చేయకుండానే తట్టెడు మట్టి తీయకుండా ఒక కాలువ తవ్వకుండా మరి మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ల పేరిట కాంట్రాక్టర్లకు మాత్రం అడ్డగోలుగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు అడ్డగోలుగా ఆనాడు మరి వారు కాంట్రాక్టర్లకు మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చి 10 ఏళ్ల పాటు ఆనాడు టైంపాస్ చేసినారు. ఇగో ఆనాటి కాగ్ రిపోర్ట్లే సాక్ష్యం. 52,000 కోట్ల అవినీతి అని నేను చెప్పడం కాదు, ఆ రోజు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ కూడా వారిని తప్పుపెట్టినారు. ఆనాడు 52,000 కోట్లకు సంబంధించి ఇది డెక్కన్ క్రానికల్ అనే పత్రిక రాసిన వార్త. 52,000 కోట్లు అని చెప్పి ఇది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పత్రిక జలయజ్ఞం ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రాడ్స్ అని చెప్పి ఆనాడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పత్రిక రాసిన వార్త. అంటే ఇట్లాంటి కోకొల్లలు ఆనాడు बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव और सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अंबरपेट हल्के असम्बली में पार्टी के महासभा से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने 75 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी इंतखाबी मंशूर के 420 वादों में से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ना तो अक़लियतों के लिए सब प्लान मुतारफ़ करवाया और ना ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अमल में तेज़ी पैदा की। उन्होंने बताया कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रोकने की ताकत इलाक़ाई जमात बीआरएस और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव में है। इस जलसे से रुकन असम्बली वेंकटेश ने भी खिताब किया। महमूद अली साहब, साबिक़ा मिनिस्टर और साइंसी तमाम मौजूद हज़रात और सदर जन साहब जनाब के वेंकटेश साहब, मेरे भाई के जैसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। अंबरपेट से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अंबरपेट में मैं 2009 से बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मगर मैं जितना भी अंबरपेट में देखा हूँ, आप तो बेहतर जानते हैं कि जो इस अवस्थान का इशू था, हमारा आखिरी जो मंजिल थी, वो मंजिल के लिए कारागढ़ साहब ने जो कोशिश की उसके लिए तालियां मारी है। आप लोगों के लिए हम सब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीज़न्स का दौरा करते हुए तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न जहानुमा के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने गौस नगर, सालेहीन कॉलोनी, बिलाल नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात भी की, जबकि अवामी मसाइल की यकसोई के लिए आवाम को तयख़ुन भी दिया। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि अधूरे कामों की तकमील फ़ौरी तौर पर की जाए और रमज़ान से क़ब्ल मज़कूरा कामों को मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा के अलावा मोहम्मद खादर और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदिर बाबा साहब, जनाब खादर साहब, GHMC वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों के साथ बल्दी डिवीज़न जहानुमा में गौस नगर, बिलाल मस्जिद और सालेहीन कॉलोनी के एरिया का पैदल दौरा किए। यहाँ की आवाम की जो शिकायत थी कि कुछ सालेहीन कॉलोनी के अंदर
पीने के पानी में पोल्यूशन आ रहा है, तो हम इमीडिएट डीजीएम से बात किए और जीएम साहब से भी बात किए और यहाँ पर एक पीने के पानी की नई लाइन डाली गई है। इंशाअल्लाह ताला उसको जंक्शन और वाल्स को बिठाना है। 2 दिन के अंदर उस काम को शुरू किया जाएगा, जंक्शन कर कर और वाल्स को बिठाकर 1 वीक के अंदर यहाँ के सालेहीन कॉलोनी के अवाम। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इम्तिहानात में शरीक होने वाले उम्मीदवारों को इंतबाह दिया है कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। सेक्रेटरी बोर्ड शरवती ओहजा ने कहा है कि नकल नवीसी के अलावा दीगर खिलाफ वर्जियों पर उम्मीदवारों के खिलाफ केसेस दर्ज किए जाएंगे और इम्तिहानी मराकज़ पर CCTV खुसूसी तौर पर नस्ब किए जा रहे हैं। बोर्ड के मुताबिक जारिया साल इंटर साल अव्वल और दुवम में जुमला 9,80,000 उम्मीदवार शरीक इम्तिहान होंगे और इस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात को खतियत दी गई है। जारिया साल इम्तिहान के लिए 27,900 निगरान इम्तिहान के अलावा हर ज़िले के लिए 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स को मुतयन किया गया है, जबकि अलहदा तौर पर 200 सिटिंग स्क्वाड्स भी इम्तिहानी मराकज़ पर खिदमत अंजाम देंगे। रमज़ान मुबारक के पेश नज़र RR मार्ट की जानिब से मुख्तलिफ राशन पैक्स फ़रोख्त के लिए पेश किए जा रहे हैं। इसके अलावा रमज़ान मुबारक में इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया खुर्दनोश का भी इंतज़ाम किया गया है। RR मार्ट के ज़िम्मेदारों ने मीडिया को बताया कि राशन पैक्स की 3 अक़साम रखी गई हैं और तमाम तंजीमों से अपील करते हैं कि वो इन ऑफ़र से इस्तेफ़ादा करें। पे है तो रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग राशन किट्स जो है उस पर हमारा मेन फोकस है और काफ़ी हैदराबाद में सबसे कम रेट्स में आपको राशन किट्स के 3 पैकेजेस बनाए हम लोग, तो एकदम कम प्राइसिंग में आपको मिलेगा और हमारे जैसी क्वालिटी शायद कोई कम्पीट कर सकेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे दाम में हम लोग राशन किट्स लॉन्च किए हैं और काफ़ी सारे जो रमज़ान के आइटम्स है वो उसको बेसन, रूह अफ़ज़ा जैसे समोसा पट्टी हो गया, खजूर हो गया, खजूर की काफ़ी सारी वैरायटी 10 से 15 वैरायटी हम लोग के पास बाई 1 गेट 1 है, बाई 1 गेट 2 भी है और रमज़ान के जितने सारे चीज़ रमज़ान में इस्तेमाल होते हैं वो आइटम्स भी हम लोग हैदराबाद से सबसे सस्ते में प्लान किए हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने 9 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इम्तिहानात मुनक़िद करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में 2022 में जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करने के चंद घंटों के अंदर नया नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए नए तौर पर दरख्वास्त दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। जुमला 563 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरख्वास्तें 23 फरवरी से 14 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन वसूल की जाएंगी और 9 जून को प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक़िद होगा। सुल्तान बाज़ार पुलिस ने मोटर बाइक्स की चोरी में मुलविस एक गैंग का पर्दाफाश किया और उसमें मुलविस 3 मुलज़िमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से 5 बाइक्स बशमूल 4 बुलेट्स भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक जी रामा अंजिनलू, जी गोपाला कृष्णा और शेख कासेटापल्ली बादशाह को हिरासत में लिया गया और उन मुलज़िमीन ने एतराफ़ किया कि सुल्तान बाज़ार हदूद के अलावा अफजलगंज, गोपालपुरम, सूर्यापेट टाउन और चिंतला पालम सूर्यापेट हदूद में हुई वारदातों में वो मुलविस हैं। ACP सुल्तान बाज़ार डिवीज़न शंकर की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में वक्तन फ़ौक्तन तलाशी मुहिम जारी है, जिसके ज़रिए गैर क़ानूनी सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही है। इस सिलसिले के तहत शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाक़ों में तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान बग़ैर दस्तावेज़ात की 26 गाड़ियों को ज़ब्त किया गया और 150 अफराद से पूछताछ भी की गई। DCP सौजोन साई चेतनिया ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। पूरा ऑपरेशन पूरा डिवीजन का फोर्स के साथ साथ
CAR का तीन प्लाटून्स पार्टिसिपेट किया। इस इंटायर एरिया में हम लोग व्हीकल्स का जो व्हीकल्स बिना नंबर प्लेट का है या जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सब चेक किया। इसमें कुल मिला के 26 व्हीकल सीज किया जिसका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, जिसका नंबर प्लेट भी नहीं है एंड एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट से उसके साथ घूम गए। और तकरीबन 150 लोग को जो सस्पिशियसली घूम रहे उसको पूछताछ किया, जिसके बाद जिससे हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज मिला उनके ऊपर केसेस भी PPD केसेस भी रजिस्टर किया। हम एक ऑर्डिनेंस सर्च के थ्रू सभी लोगों को इस एक्शन के थ्रू सभी लोग को यही भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है उनको हम कैसे भी करके उनको पकड़ेंगे। और साथ साथ जो आम जनता है उनको हम भरोसा भी दिलाते हैं कि ये शांति का शहर है और शांति हमेशा रहेगी। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो कितने भी की कोशिश करे पुलिस उनको जरूर पकड़े। थैंक यू। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। राजीव राहदारी पर डिवाइडर से टकराने वाली कार पलट गई और सड़क के दूसरी जानिब एक दूसरी कार पर गिर पड़ी, जबकि इस वाक़े में 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि सिद्दीपेट से हैदराबाद की तरफ एक तेज़ रफ्तार कार जब कोकटुलपल्ली के करीब पहुंची तो कार का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और डिवाइडर से कार टकरा गई। इसके बाद ये पलटकर दूसरी तरफ से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई, जिसके बाद कार हवा में उड़ती हुई सड़क पर गिर गई। इस वाक़े में 2 कारें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए जिन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई गई है। मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। इस हादसे से मुताल्लिक़ मनाजिर वहाँ पर लगे CCTV फुटेजेस में रिकॉर्ड हुए हैं। ज़ख्मियों की शिनाख्त करीमनगर डेयरी के मुशीर हनुमंत रेड्डी, मेदक के साबिक़ रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी के ड्राइवर शोभन और प्रशांत की हैसियत से की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने अपनी 2 ज़मानतों के सिलसिले में जारी किया जियो। सफ़ेद राशन कार्ड गिरंदगान को 500 रुपये फ़ी LPG सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही का आगाज़। हैदराबाद दुनिया के नक्शे पर फार्मा हब के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बायो एशिया 2024 कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बुलेट बाइक्स के सरक़े में मुलविस गैंग का पर्दाफाश, 3 मुलज़िमीन गिरफ्तार, सरखाशुदा बुलेट्स की गई ज़ब्त। नाज़रीन, रिव्यू न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रिव्यू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रिव्यू न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।